Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on chapter 1 of your history 6 books. So let's quickly have a look at today's student learning outcome. In today's lesson, you will be able to describe the basic characteristics of Egyptian civilization, that is its social and political life, religious life, writing style, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट आर्किटेक्चर. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. उसके अलावा आज हमने रिलीजन को, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को, राइटिंग स्टाइल को, ट्रेड और ऑक्यूपेशन को, तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवर नाइल एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिस्कस किया था. इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और यहाँ का किस किस्म का लाइफस्टाइल था आज हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिलीजन से आगाज़ करेंगे कि किस तरीके कौन सा रिलीजन था यहाँ. तो जैसे हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे भी बहुत सारे खुदाओं को माना जाता था, तो कुछ सेम यहाँ भी केस था कि यहाँ पर भी बहुत सारे गॉड्स और गॉडेस जो है उनके ऊपर बिलीव किया जाता था. सो रिलीजन वाज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दिस civilization. So Egyptians believed in many gods and goddess. For example, Ra was the sun god and Isis was the goddess of magic and motherhood. Temples were places of worship and priests played important role. So बहुत से gods and goddess थे. किसी को सूरज का देवता कहा जाता था, किसी को चांद का, किसी को दिन का, किसी को रात का. तो they used to believe in a lot of gods and goddess. और ये इनकी जिंदगी का central aspect होता था religion जो है. Okay, so moving on towards the social structure. सोशल स्ट्रक्चर में एज ऑलवेज हमने पहले भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा क्लास सिस्टम यहाँ होता था. तो इनकी क्लास हायरार्कीज जो है वो किस तरीके से थी. लेट्स हैव अ लुक. एट द टॉप दे वर किंग्स टू मेंटेन द पीस, और उसको फेरो कहा जाता था, जिसको आप उर्दू में फ़िरौन भी कहते हैं. जो सेकेंड लेवल था उस पर वाइजर्स और प्रीस्ट होते थे, जो कि वाइजर्स जो है ये फाइनेंशियल मैटर्स देखते थे, और प्रीस्ट जो है दे यूज्ड टू लुक अपॉन द religious matters. Below them were the craftsmen who used to make the paintings and the artifacts, and they also used to record the death. Below them there were craftsmen and artists who used to make sculptures and pottery. Then below them there were the very low caste where the people used to do the farming and agriculture, and beneath them there was an other class. There were slaves and servants, and even below them there were laborers in the fields and construction sites. So इस तरीके से इनकी कास्ट सिस्टम थी. बहुत ज़्यादा क्लासेस थी डिफरेंट, जो जिस किस्म का काम करता था उसको उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता था. So this was the social structure of ancient civilization. Now how they used to wear different kind of clothes. कपड़े इनके किस तरह के होते थे. तो क्लोथिंग इनकी बड़ी सिंपल होती थी. They used to make their clothes out of linen, light and comfortable fabric. Both men and women wore the simple clothes. They were not sewn properly, and people just wrapped them around their bodies and held them together with a belt. So basically इनके जो ट्यूनिक्स होते थे वो properly stitch नहीं हुए होते थे, बल्कि एक बड़ी सी आप कह सकते हैं कि piece of shawl होती थी which they used to drape around their body, and they used to held it with the help of a belt. और इनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता था. स्पेशली दे यूज्ड टू वेयर नेक पीसेस अ लॉट, और अक्सर आपने जो स्कल्पचर्स हैं उनमें भी देखा होगा कि दे आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी इन देयर हैंड्स एंड ऑल्सो इन देयर नेक्स. Okay, apart from that, let's quickly have a look at how they used to indulge into different agricultural activities. So Egyptians were skilled farmers using fertile Nile soil to grow crops. They grew crops like wheat, barley, vegetables, onion, garlic, leeks, beans, lentils, peas, radishes, cabbages, cucumbers and lettuce. So हर तरह की सब्जी और अनाज वहाँ उगाया जाता था. They also cultivated fruits such as dates, figs, pomegranates, melons and grapes. Industrial crops included papyrus and flax for making linen. So आप देख सकते हैं कि हर तरह का अनाज, फल और सब्जियां यहाँ उगाए जाते थे. इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में जिनसे वो अपने कपड़े बनाते थे उसके लिए भी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती थी. जैसे कि कॉटन आजकल ग्रो की जाती है, तो दे यूज टू ग्रो पपायरस एंड फ्लैक्स टू मेक देयर क्लोथ्स आउट ऑफ इट. ओके, सो फर्दर एग्रीकल्चर को इन्होंने मुख्तलिफ सीजन्स में डिवाइड किया हुआ था. देयर वर बेसिकली 3 सीजन्स. वन वाज नोन एज अखत,
पैरट एंड शीमू। अब आखिर जो सीजन था ये जून से सितंबर तक चलता था और इसमें बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से फ्लडिंग होती थी। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी देयर वाज ग्रोइंग सीजन, जबकि फ्लडिंग खत्म हो जाती थी तो दे यूज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स। एंड आफ्टर दैट देयर वाज शीमू। इन दिस सीजन दिस वाज फ्रॉम मार्च टू मई, जिसमें ये लोग अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट यानी कि कट डाउन कर लेते थे और उसको फिर स्टोर कर लेते थे फॉर द फ्लडिंग सीजन। सो अब यहाँ से हम इसको एक सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है उसको फ्लरिश करता था रिवर नाइल के आसपास, और मैं आपको मुख्तलिफ सीजन जो है उनके वो दिखाती हूँ। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ सिमुलेशन। ओके, सो हमने पहले भी देखा था कि बिफोर फ्लड the area or around the banks of the river Nile used to look like this। आप देख सकते हैं कि जितना भी रिवर के पास इलाका है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए है। पीछे का इलाका जो है अगर आप उसको देखें सॉरी मैं इसको जूम आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके घर बने हुए हैं, तो दरिया है, क्रॉप्स है और उसके बाद उनकी आबादकारियाँ हैं। सो अब हम देखते हैं कि जब फ्लड आता था यानी कि आखिर सीजन होता था तो पानी बढ़ता बढ़ता बारिशों की वजह से जो है वो उनकी क्रॉप्स तक चला जाता था। अब यहाँ जो है इट वाज ऑल द एग्रीकल्चर जोन इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, ठीक है, पानी के नीचे। अब ड्रेनिंग स्टार्ट होती थी, जैसे बारिशें रुकती थी पानी जो है वो वापस अपनी जगह पे चला जाता था। इससे क्या होता था कि दरिया अपने साथ जितनी जरखेज मिट्टी लाता था वो इनके एग्रीकल्चरल जोन में छोड़ जाता था। अब आप यहाँ देखें कि कितनी जरखेज मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। नाउ दिस सॉइल इज रियली फर्टाइल एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ये लोग जो है ये अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे पैरेट सीजन में, और उसके बाद जो है वो जो सीजन आता था शीमू सीजन जो था उसमें इनकी कटिंग हो जाती थी, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, एंड देन दे यूज्ड टू स्टोर इट फॉर ड्यूरिंग द फ्लडिंग जोन और फॉर द फेमिन्स to protect themselves or to feed themselves. Okay, now let's quickly move forward towards the presentation and move forward towards the next part जिसमें हम hieroglyphics यानी कि जो इनकी writings थी उनकी बात करते हैं. So Egyptians had a special way of writing called hieroglyphics. There were pictures that stood for words and ideas. So यानी कि pictures हुआ करती थी for every word. How interesting. और हर पिक्चर जो है इट यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ड. सो दिस इज हाउ दे यूज टू राइट. दे रोट ऑन टेम्पल वॉल्स, टूम्स एंड कॉफन्स ऑफ फेरोज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, कम्युनिकेशन एंड अदर पर्पसेस. और ये मुख्तलिफ जगह पे ये राइटिंग्स जो हैं जब डिगिंग हुई और इनके जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ से निकले तो उनके ऊपर अक्सर जगहों पे हायरोग्लिफिक्स से लिखा गया था. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस राइटिंग इज बिन डीकोडेड. इसको डीकोड करके अंडरस्टैंड कर लिया गया. Later, hieratic was developed for priests. अब special writings develop हुई priest के लिए, hieratic writing develop हुई. आम public जो थी उसके लिए demotic writing develop हुई. और Coptic जो है it was introduced for vowels for accurate pronunciation. For speaking and for literature उन्होंने एक special किस्म की language जो है वो उसका आगाज़ किया. तो further hieroglyphics was divided into next 3 different languages. priests के लिए, आवाम के लिए और फिर literature के लिए या पढ़ाई वगैरह के लिए. Okay my dear students, so I hope you have understood today's lesson जिसमें हमने तमाम जो social background था, किस तरीके से वहाँ लोग रहते थे और क्या उनका social structure था, किस तरीके से एग्रीकल्चर वो वहाँ पर काम करते थे, फसलें उगाते थे. We have discussed it all. In the next lecture we will discuss the architecture of Egyptian civilization. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will do home activity. There are 2 home activities that you will complete at your home, and you will also complete some of the related MCQs that are given in your book. You will also complete the related questions in exercise 2 and exercise 3. You will also complete skill 1.9 and skill 1.10. Attach this QR code. This QR code is attached in your book. Scan the QR code and there is worksheet inside. So complete the worksheet. So my dear students, this was your today's lesson. I hope now you are fully able to describe and understand the different social background, structure, not the architecture, religion, hieroglyphics, writing, and the agriculture of
ancient Egyptian civilization. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.